इस क्लास आपको पता है कि हम लोग जो है एवरीडे वी आर डूइंग द रिवीजन पार्ट, और हमने लास्ट रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द कॉन्टिनेंट एंड द ओशंस। हमने क्या पढ़े थे? अबाउट कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। सो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? हमने क्या पढ़ा था? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? बताइए, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? Do anybody knows how many continents are there? Very good. There are 7 continents all over the world. और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था types of oceans. Okay. Now tell me, how many types of oceans are there? How many types of oceans are there? Yes. Okay. There are 5 types of ocean. I am repeating this again and again because this will be needed by you throughout your study life. आपको जब आप बड़े होंगे और आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको इसको और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, isn't it? So you must know these things and quickly you write down the icy continent of the world. What is the icy continent of the world? Quickly write down the spelling. Icy continent of the world. Icy continent. Sparsh. It is not Asia. Icy continent. What is the icy continent? Continent बताइए. Yes, I am waiting for the answer. What is the icy continent? Icy continent is Antarctica. Very good. Icy continent is Antarctica. And मैंने आपको इसलिए लिखने के लिए कहा है because I wanted you to write down the spellings correctly. Okay, Antarctica, Antarctica, Antarctica. Okay, so your spelling should be correct. You learn the spelling. It's very important because अगर spelling गलत हुआ तो what will happen? You will marks will be deducted. So your spelling should be very much correct. Okay. Now the next is, in which continent do we live? In which continent do we live? Children, I want the answers from you. In which continent do we live? हम कौन से continent में रहते हैं? Asia. Very good. So it is a very small word and spelling is very easy for us. Okay, very nice. Good. Very good. Now you will answer about, name the continent which is the country and the continent itself. Which is a continent and the country itself. Name the continent which is country itself. बताइए, what is it? जो खुद, yes, it is Australia. Yes, so you need to learn again the spellings. बहुत जरूरी है कि आप ये spellings learn करें. Again and again I am telling because questions will be coming from this lesson, you know that. So you have to learn the spellings. अब हम चलते हैं, कुछ questions हम करेंगे और आपको ऑलरेडी हमने बताया था ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स. आपको सारे 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम्स आपको पता होना चाहिए एंड ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स के नेम भी आपको ये पता होना चाहिए. नाउ वी विल गो फॉर द फ्यू क्वेश्चंस. और मैंने ये भी बताया था कि आपको मैप का भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कॉन्टिनेंट्स है. दोज ऑल्सो यू शुड नो. Two things made of flour. Wheat flour. Two things made of wheat flour. बताइए. Two things made of wheat flour मतलब क्या होता है? Wheat flour मतलब आटे का बना हुआ. ओके, आटे का बना हुआ. बताइए 2 सामान.
and tell me 3 root vegetables. 3 root vegetables. Okay, bread. Okay, bread is there. Wheat bread हम देखते हैं आजकल हमें मिल जाता है wheat bread. और हमें क्या मिलता है? रोटी we can make, पराठास we can make. और क्या चीज है? केक. हम क्या बनाते हैं? फ्लोर से केक. ओके. और हम कौन सा सामान यहाँ लिख सकते हैं? केक, ब्रेड, और क्या लिख सकते हैं? चपाती, रोटी, पूरी. इजंट इट? ये सब जो फूड आइटम्स है हमको व्हीट फ्लोर से हम बना सकते हैं. नाउ रूट वेजिटेबल्स. यस, वेरी करेक्ट आंसर्स. वी हैव गॉट बीट रूट, क्योंकि वो रूट है. हम रूट पार्ट खाते हैं बीट रूट का. तो बीट रूट, देन radish is there, then carrot is there, and many more vegetables are there. Yes, very good. Atta noodles bhi hai, paratha and biscuits. Yes, so many tasty dishes. I am feeling hungry now. So many tasty dishes. Good. Now this 3 root vegetables हमने लिखा है. अब हम लिखेंगे stem vegetables. Stem vegetables कौन से हैं बताइए? Already we have done once. हमने किया हुआ है ये स्टेम वेजिटेबल्स. स्टेम वेजिटेबल्स बताइए जिसका हम स्टेम पार्ट खाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज जो प्लांट प्रोडक्ट होता है वो प्लांट पर बनता है, और प्लांट का लीफ पार्ट हम खाते हैं. कभी हम रूट पार्ट खाते हैं, कभी हम फ्रूट पार्ट खाते हैं, और कभी हम फ्लावर पार्ट्स हम खाते हैं. सो हियर आई वांट टू नो अबाउट द स्टेम वेजिटेबल. What are stem vegetable? What is the part of the plant जिसका हम stem खाते हैं? So cabbage जो है leaf part है, that is called as leafy vegetable. Cabbage is a leaf part of that cabbage plant. So can you tell me what are the stem vegetables? आपको बताया गया था stem vegetable. Yes, sugar cane is a fruit. Of course, we eat the stem part of the sugar cane. That is very good. Stem part of the sugar cane. That is good. But that is sugar cane is a type of a fruit. और हम bamboos भी खाते हैं. आपको पता है जो छोटे bamboo shoots होते हैं, हम bamboo shoot भी खाते हैं. Now here I am getting the answers: tomato and lady's finger. मैं आपको बता दूं, tomato is a fruit part of the tomato plant. Tomato plant का वो fruit part है. Lady's finger is also फ्रूट पार्ट ऑफ द लेडीज फिंगर प्लांट. तो यहाँ जो स्टेम वेजिटेबल्स है हमारे पास क्या है? पोटैटो. पोटैटो का जो प्लांट है, पोटैटो जो है वो स्टेम है. पोटैटो प्लांट का स्टेम है. सो ये हो गया पोटैटो. ओके. एंड एक और हमारे पास वेजिटेबल है, दैट इज जिंजर. ओके. जिंजर जो है वो स्टेम पार्ट है. स्टेम पार्ट ऑफ द जिंजर प्लांट. जो जिंजर प्लांट है, यू नो दीज ऑल आर प्लांट प्रोडक्ट है ना, वो प्लांट प्रोडक्ट्स है ये सब. तो पोटैटो एंड जिंजर ये जो है वो होता है स्टेम वेजिटेबल, स्टेम पार्ट ऑफ दैट प्लांट. ओके. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट लीफी वेजिटेबल्स. लीफी वेजिटेबल्स बहुत इजी है, ये तो सबको पता है. व्हाट आर द लीफी वेजिटेबल्स? लीफी पार्ट कौन से है लीफी वेजिटेबल्स? जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था, स्पिनच इज देयर, एंड देन कैबेज हो गया, देन फेनुग्रीक हो गया. फेनुग्रीक इज व्हाट? इट इज मेथी. फेनुग्रीक मतलब मेथी. तो फेनुग्रीक हो गया, स्पिनच हो गया. सो दीज आर द फेनुग्रीक. These are all the leafy vegetables जिसका उस प्लांट में कोरिएंडर लीव्स या कोरिएंडर लीव्स भी है, मिंट लीव्स भी है जो कि हर्ब्स में आता है. बट वी कैन राइट डाउन इट इज अ लीफी वेजिटेबल्स, और हम इसके पत्ते ही खाते हैं. पार्ट का लीफी पार्ट हम खाते हैं, प्लांट का लीफी पार्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज what was the next things?
2 milk products you tell me. Milk products. मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं बताइए, जो कि दूध से बनता है. व्हाट आर द मिल्क प्रोडक्ट्स? व्हाट आर द मिल्क प्रोडक्ट्स? मिल्क प्रोडक्ट्स. ओके, वेरी गुड. बटर, चीज, आइसक्रीम, योगर्ट. वेरी नाइस. तो आपके हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि मिल्क से बनते हैं. वेरी गुड. ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिल्क से बनते हैं. देन ओवर इंसेक्ट ईटर्स. बताइए. मिल्क प्रोडक्ट्स इज अ वेरी इजी, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या चीजें हमें मिल्क से मिलती है. इवन वी गेट घी, बटर, ये सब जो है मिल्क प्रोडक्ट है. इट इज एनर्जी गिविंग फूड. ये हमको एनर्जी भी देती है, isn't it? Now here are the insect eaters. आप ये बताइए कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं. इंसेक्ट ईटर्स में क्या क्या आएगा बताइए. लिजार्ड. ओके, लिजार्ड आएगा. देन स्पाइडर भी आता है, बिकॉज स्पाइडर एक एनिमल में ही आएगा, वो इंसेक्ट में नहीं आता है. सो वी कैन राइट डाउन स्पाइडर ऑल्सो. और हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉग. वेरी गुड. फ्रॉग हो गया. एंड वी कैन राइट snakes also. They also eat. Okay, they also eat insects, isn't it? So basically हम क्या लिखते हैं? lizard, frog, ये सब जो है, जो sometimes birds, some birds they also eat insects. woodpecker जो है वो भी insect लेती है. So you can write down lizard, you can write down what else? Frog. Okay, chameleons. You can write down chameleon, that also eat insects. Okay, so these are the insect eater. अब हम लिखेंगे number 7. On whom do the domestic animals depends for food? बताइए. On whom the domestic animals depends for food. खाने के लिए domestic animals किस पर डिपेंड होते हैं? What will be the answer? On whom do the domestic animals depend for their food? Like when we go to jungle, अब जंगल में आप जो है लायन को खाने के लिए देते हैं? नो. लायन जो है खाना अपने आप ले लेता है, वो खुद ही शिकार करता है, isn't it? वो जो है वो खुद ही शिकार करता है और अपना खाना ले लेता है. आपको लायन के लिए, लेपर्ड के लिए या डियर के लिए आपको वहां जाके खाना देना नहीं पड़ता है. लेकिन जो एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं या फिर हमारे फार्म हाउस में रहते हैं, फार्म में रहते हैं, तो उनको खाना कौन देता है? वो उनको खाना कहाँ से मिलता है? वो किस पर डिपेंड होते हैं? ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मैंने क्या लिखा? ऑन whom do the domestic animals depend for food? डोमेस्टिक एनिमल्स किस पर डिपेंड होते हैं? लोगों पर, हम पर. अगर मैंने कोई डॉग पाला है तो उसको खाना कौन देगा? आई विल गिव. अगर आपके घर में कोई रैबिट है, कोई डॉग है, कोई पिग है या काऊ है या बफेलो है, उनको खाना कौन देता है? हु गिव्स? आपके पापा देते होंगे, मम्मी, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, दादा दादी, यही लोग देते हैं खाना. या काऊ कहीं बाहर से जाके कभी कभी वो लोग ग्राउंड से खाना लेते हैं, लेकिन उनको वहां तक लेके कौन जाता है? आप ही के फैमिली मेंबर्स ही लेके जाएंगे, isn't it? तो खाना जो है कौन देता है? दे डिपेंड ऑन अस ह्यूमन बीइंग्स. दे डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग्स. सो व्हाट विल बी द आंसर?
Domestic animals depends on humans for their food. ओके क्योंकि जब हम किसी एनिमल को हमारे घर में रखते हैं तो उनका खाना जो है वो हम ही प्रोवाइड करते हैं, उनको बाहर से जाके खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉग हो तो हम उनको दाल चावल या मीट बोन्स हम देते हैं, और अगर हमारे घर में रैबिट हो तो हम उनको कैरेट या रेडिश या पत्ते हम लाकर खुद ही देते हैं। तो उनको जो है हमें ही, ह्यूमन बीइंग्स हमें ही उनको खाना प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके और जब वाइल्ड एनिमल्स को खाना कौन देता है? फ्रॉम वेयर डू द वाइल्ड एनिमल्स गेट फूड? बताइए वाइल्ड एनिमल्स कहाँ से उनको खाना मिलता है? अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा फ्रॉम वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स गेट देयर फूड, तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? फ्रॉम वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स गेट देयर फूड? कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, बताइए। Yes, they get the food from the nature, from the forest. Okay, they hunt themselves, they find their food themselves in the nature. और you should attend the online classes क्योंकि ऐसे बहुत सारे doubts हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको इसमें जानने को मिलता है, isn't it? The question answers we are solving. अगर ये questions आपके पेपर में आए तो you will have to write the answers. आपको ये पता होना चाहिए कि what are the answers. Now tell me, why do we wash hand before eating? Why do we wash hand before eating? हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? Tell me the answer. Why do we wash hand before eating? Why do we wash hand? इवन अगर आपके घर में पेट है तो आप उनको जब खाना देते हैं उसके बाद आपको अपना हाथ धोकर ही खुद को खाना खाना पड़ता है ना? सो वी नीड टू वॉश हैंड एवरी नाउ एंड देन। जब आप वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट्स के लिए जाते हैं, तभी भी आपको निकल के पहले हाथ धोना होता है। इवन आप जब खेल कर आते हैं तो भी आपको हैंड वॉश करना होता है। तो आप मुझे बताइए कि आप इतने बार हैंड वॉश क्यों करते हैं? और जब हम खाना खाने बैठते हैं तभी भी टीचर भी बोलती है गो वॉश योर हैंड्स, एंड पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि खाना खाने से पहले अपना हाथ धो लो। ओके सो व्हाई इट इज सो? ड्यू टू द जर्म्स। वेरी गुड। वी वॉश आवर हैंड, we wash our hand to avoid falling sick. Okay, हमें बीमार नहीं पड़ना है इसलिए हम हाथ धोकर ही खाना खाने बैठते हैं। Because germs may fall, germs में what will do, germs जो है हमको sick बना सकते हैं। They may infect us, हमको infection कर सकते हैं। That's why what we do, we wash our hands before eating. Now why do we wash vegetables before eating? Why do we wash vegetables before eating? Why do we wash vegetables before eating? Vegetables and fruits. आप fruits भी लिख सकते हैं। Why do we wash vegetables and fruits before eating? Again उसका आंसर सेम ही होगा because vegetables and fruits में पेस्टिसाइड्स होते हैं। वेरी नाइस। एंड जब हम बाहर से लाते हैं टू वॉश अवे पेस्टिसाइड्स, dust and germs which are on the cover of the fruits and vegetables. So when we wash it with the water, तो वो सारा जो germs है, जो dust है, जो pesticide उसमें लगे होते हैं, वो क्या होता है? वॉश अवे हो जाता है। इट इज वेरी मच सेफ फॉर अस टू कंज्यूम। हमें खाने के लिए वो बहुत ज्यादा सेफ होता है। एंड वी इन दिस वे वी कैन अवॉइड गेटिंग सिक। हम बीमार होने से इस तरह से हम बच सकते हैं। दैट्स व्हाई वी वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग।
रिमूव बैक्टीरिया एंड पेस्टिसाइड्स, ओके। एंड बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स जो है, बैक्टीरियाज तो ओके, जर्म्स है जो, बिकॉज देयर आर गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरिया, तो हम जो है जर्म्स जो है दोज ऑल आर बैड टाइप ऑफ माइक्रोबियल बैक्टीरियाज। तो जो जर्म्स है दिस विल बी द करेक्ट वर्ड। सो हम जर्म्स एंड पेस्टिसाइड्स जो है वहां से वॉश करने के लिए हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को वॉश करते हैं। So it's very good. All have given the answers and all have participated. And mostly I have covered the questions. हमने सारे लेसन से मैंने क्वेश्चन कवर किया है. So here only I will end the revision class. And इसके बाद आपका दिवाली का वेकेशन लग रहा है. So very happy Diwali. एंड इसके बाद मुझे आपको विश करने का मौका नहीं मिलेगा दिस ऑनलाइन, उसके बाद सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही होंगे. सो थैंक यू वेरी मच and it was lovely. It's very nice that you have given the answers, and thank you and happy Diwali और have a very safe Diwali. बिल्कुल फटाके के पास ज़्यादा मत जाइए, अगर आपने फटाका जलाया है तो बिल्कुल भी सेफ तरीके से जलाइए. एंड ऑल्सो व्हाट क्रैकर्स, एक तो आपको जलाना नहीं है, फिर भी अगर आप जलाते हैं तो नॉइज पोल्यूशन आपको कम रखना है, isn't it? Yes. So thank you everybody. एंड सेफ दिवाली, और बिल्कुल कोविड पेंडेमिक का भी ध्यान रखिए. वेयर योर मास्क प्रॉपरली. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.